Hello students, in this video I am going to cover the first chapter of an English textbook, that is Attila. This story is taken from R.K. Narayan's story collections, Malgudi Days. The characters concerned here are the dog named Attila, mother, younger son, and the fourth one, that is Ranga. Ranga is very important character here. Then the story is about the dog. The dog Attila is taken as a pet by a family with some obvious expectations from a watchdog. Watchdog means a dog which is kept to avoid someone uninvited at the home. मीन्स हम घर में किसी को ऐसे जिसको अभी तक हमने इनवाइट नहीं किया है, जो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है या फिर घुस रहा है अपनी मर्ज़ी से हमारी चोर की तरह, उसको रोकने के लिए हम वॉच डॉग रखते हैं, जस्ट लाइक अ वॉचमैन. तो हियर अटीला इज़ केप्ट फॉर वॉच डॉग. ही इज़ नेम्ड अटीला आफ्टर अ हांस रूलर नेम्ड अटीला. हांस के एक रूलर हैं, उनका नाम अटीला था, उनके नाम पे इन्होंने डॉग का नाम रखा है. There is a reason, we will see in the chapter. And why they are keeping dog? Because there are some recent event of theft in the neighborhood. ठीक है, और आस पड़ोस में कुछ चोरी के कुछ खबरें आई हैं यहाँ पे, इसलिए वो डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने घर में किसी डॉग को रखें ताकि वो इस तरह के किसी भी इवेंट को अवॉइड कर सके. नाउ What do you think? Do the dog fulfill the family's expectation? जो डॉग है क्या वो फैमिली के एक्सपेक्टेशन को पूरी कर पाता है? क्या डॉग फुलफिल कर पाता है अपने नाम के मतलब को? Do the dog fulfills the meaning of his name? Do or are the dog always fearsome or they can be lovable or loving? क्या डॉग हमेशा डरावने ही हो सकते हैं? क्या वो प्यारे नहीं हो सकता है? क्या उनको प्यार की ज़रूरत नहीं होती? क्या उनको इमोशंस की ज़रूरत नहीं होती है ना? तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू आंसर टू. नाउ कीप योर बुक विद यू as I am going to explain the lesson line by line. I will read the paragraph first and then I will explain. So keep the book with you and go on with me. This is where the chapter starts. The family wanted a strong and formidable dog who could prevent break-ins and theft in their house. A 2-month-old black and white puppy was brought home. He was named Attila after the Scrooge of Europe. He had square jaws, red eyes, pug nose, and a massive head. He gave no hope that he would do credit to his name. Actually, what happened? The family here we are concerned with is wanting a dog. एक डॉग चाहिए उनको जो कि स्ट्रांग हो और फॉर्मिडेबल हो. फॉर्मिडेबल मतलब जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके. फॉर्मिडेबल, ओके. हु कुड प्रिवेंट ब्रेक-इन्स. ब्रेक-इन्स मतलब घर के अंदर तोड़ के घुसना, है ना. ब्रेक-इन्स और थेफ्ट, चोरी, इनको प्रिवेंट कर सके, इनको अवॉइड कर सके, ठीक है, उनसे बचा सके, बेसिकली बोलना चाहिए. द 2 months old black and white puppy, they have brought a puppy and he is black and white and his jaw is square in shape. He's having red eyes, a pug nose and massive head. And they named him Attila after means उनके नाम पर रखा गया है. स्क्रॉज ऑफ यूरोप. And who is Scrooge of Europe? Here it is given. The Scrooge of Europe is frequently called Attila the Huns, was the ruler of Huns in 434 CE. ठीक है, CE means obviously CE means क्या होता है? क्राइस्ट के एरा में, ठीक है, until his death in March 453 CE. स्कॉर्च मीन्स समवन हु कॉज ट्रबल. स्कॉर्च उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता है, ठीक है.
CE का मतलब होता है क्राइस्ट एरा, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। क्राइस्ट एरा का मतलब होता है क्रिश्चियन एरा, जिसको हम लोग AD भी कहते हैं। ओके, नाउ the puppy, as I have already indicated, did not have a very pre-processing appearance and was none too playful, but did not prevent his owner from sitting in a circle around him and admiring him. तो डॉग जो है, जैसा कि राइटर ने पहले ही बता चुका है कि वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव नहीं था देखने में, छोटा सा था और उसको देखने में ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जिस पर्पज़ के लिए उसको लाया गया है वो पर्पज़ पूरा हो पाएगा, बट फिर भी लोगों का एडमायरेशन उसको मिलता था। देर वॉज अ प्रोलोंग डिबेट एज वॉट ही शुड बी नेम्ड। द यंगेस्ट सजेस्टेड वाई नॉट कॉल हिम टाइगर। तो उनके नाम को रखने के लिए जहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं, तो समवन हैव सजेस्टेड दैट दे हैव टू कीप देयर नेम टाइगर, बट टाइगर वॉज सो स्ट्रीट मॉन्ग्रल नेम। स्ट्रीट मॉन्ग्रल मतलब जो सड़क पे जो घूमते रहते हैं जो डॉग्स, उनके जैसा नाम लग रहा है, तो उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। वाई नॉट सीजर? Caesar, if a census was taken of dog, you would find at least 15,000 Caesars in South India alone. तो वो इज सेइंग, सम अदर सेज दैट अगर सीज़र नाम रखेंगे तो अगर हम लोग सेंसस करें, मतलब अगर हम लोग गिनती करें कि पूरे डॉग्स की इंडिया में, ठीक है, सिर्फ साउथ इंडिया में, तो वी विल सी दैट देर आर 15,000 सीजर्स। 15,000 सीजर्स होंगे, मतलब वो नाम बहुत ही कॉमन है, हमें ये नाम नहीं रखना चाहिए। देन उसके बाद बहुत सारे नाम आए, जैसे कि फायर, इट इज़ फैंटास्टिक, बट फैंटास्टिक हेयर यूज एज अ आयरनी, मतलब कि ये मजाक की तरह यूज़ किया जा रहा है यहाँ। फायर एक्चुअली वो चाहते नहीं कि रखें। वाई नॉट थंडर? थंडर इज़ टू ऑब्वियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम है। ग्रिप, इट इज़ सो चाइल्डिश, है ना, ये भी एक बहुत ही बचकाना सा नाम है। देर वॉज ए डेड लॉक, मतलब अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो someone suggested Attila, and a shout of joy went up to the skies. No more satisfying name was thought of for man or animal. तो अभी तक इससे अच्छा कोई नाम उन लोगों ने नहीं सुना था। ये दिस वाला नाम एटिला जो है, ये बहुत ही अच्छा नाम था। बट as time passed, our Attila exhibited a love of humanity which was sometimes disconcerting. The scourge of Europe, could he ever have been like this? लेकिन अब एग्जिबिटेड द लव ऑफ ह्यूमैनिटी, उन लोगों ने चाहा था कि जो डॉग वो पाल रहे हैं, जो रख रहे हैं, वो स्ट्रांग हो, थोड़ा क्रूअल नेचर का हो, रूड हो, ताकि वो लोगों को भगा सके, डरा सके। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, अटीला जो है वो उसने बहुत ही अच्छा लव ऑफ ह्यूमैनिटी को एग्जिबिट किया, मतलब एग्जीबिशन, मतलब उसने शो ऑफ किया, है ना। उसको देख के लगता ही नहीं था कि वो कभी किसी को डरा सकता है, बल्कि उसके अंदर एक इंसानों को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार था, लव था। तो उन लोगों को लगा कि क्या ये नाम जो स्कॉच ऑफ यूरोप है, ये उसके ऊपर जचता भी है, उसके ऊपर अच्छा भी लगेगा। देन दे पुट इट डाउन टू हिज एज। व्हाट चाइल्ड कुड हेल्प लविंग ऑल क्रिएचर्स, ठीक है। In their zeal to establish this fact, they went to the extent of delving into ancient history to find out what the scourge of Europe was like when he was a child. Then it was a zeal, is in their zeal, zeal means उत्सुकता। जैसे कि हम किसी चीज़ को खोजने के लिए जब हम लोग पर होते हैं ना, बिल्कुल हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, दैट इज़ zeal, दैट एक्साइटमेंट टू फाइंड समथिंग न्यू, है ना। दे डेल्विंग इनटू, डेल्विंग मतलब कि अंदर घुसना, डेल्व्ड इनटू द एंशिएंट हिस्ट्री टू फाइंड आउट व्हाट द स्क्रॉच ऑफ यूरोप वाज लाइक व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो वो लोग अंदर घुसने लगे, उन लोग और ज़्यादा हिस्ट्री निकालने लगे, किसके बारे में, स्कॉच ऑफ यूरोप के बारे में, कि जब वो बच्चा था, जब वो चाइल्ड था, तब वो कैसा था। बिकॉज वो सोच रहे हैं कि अभी ये छोटा है, इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मे बी जो अटीला, जो स्कॉच ऑफ यूरोप हैं, वो भी अपने बचपन में ऐसे ही बिहेव करते होंगे, ये इनका एक एक्सपेक्टेशन है। तो इट वॉज रूमर्ड दैट एज अ चाइल्ड ही क्लंग टू हिज फ्रेंड एंड टू हिज पेरेंट्स फ्रेंड्स so fast that often he had to be beaten and separated from them। तब उनको पता चलता है कि बचपन में क्या होता था। जो अटीला थे, जो रूलर थे, what he used to do, he used to क्लंग, क्लंग में चिपक जाना या फिर गोदी में कूद जाना, है ना।
तो द क्लंग इन टू हिज फ्रेंड एंड टू पेरेंट्स फ्रेंड, इतना इस तरीके से जब चिपके रहते थे वो अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, कि कभी कभी उनको डांट कर अलग करना पड़ता था. बट वेन ही वॉज 14 ही सोड द फर्स्ट साइन ऑफ हिज फ्यूचर. जब वो 14 ईयर्स के हुए तब उन्होंने पहली बार ये शो किया कि नो, ही इज़ गोइंग टू बी समवॉट क्रूअल और रूड. ही नॉक डाउन अ फेलो हु ट्राइड टू टच हिज मार्बल. ठीक है, उन्होंने क्या किया 14 ईयर्स में, जिसने एक बार किसने उनसे कुछ उनके मार्बल्स उनसे लेने की कोशिश की तो उन्होंने उसको क्या किया, मार कर गिरा दिया. This was the first time that he has showed his sign of rudeness. है ना, अपनी रूडनेस को दिखाया था फर्स्ट टाइम वो. This was encouraging. Let our dog reach the parallel of 14 years and people would get to know this real nature. ठीक है, तो ओ अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब एक काम करते हैं कि लेट अवर डॉग रीच द पैरेलल. अब हम चाहते, चलो एक काम करते हैं, इंतज़ार करते हैं हमारा डॉग भी जब 14 ईयर्स का हो जाएगा तो वो भी उस तरीके से क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा अटीला की तरह. देन but this was a vain promise. He stood up 20 inches high, had a large frame, and a forbidden appearance on the whole. But that was all. A variety of people entered the gates of the house every day: mendicants, bill collectors, postmen, tradesmen, and family friends. All of them were warmly received by Attila. The moment the gate clicked, he became alert and stood up looking towards the gate. By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging forward. But that was all. The person had only to stop and smile, and Attila would melt. He would behave as if he apologized for even giving an impression of violence. He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes, and moan as if to say, "How sad that you should have mistaken my gesture. I only hurried down to greet you," till he was patted on the head, stroked, and told that he was forgiven. He would be in extreme misery. ठीक है, तो what happens here, that it was a vain promise, that they have promised that when he will become 14 years then everything will be fine. But no, that promise was vain. Vain means क्या होता है, जो कि यूजलेस, जिसका कोई मतलब ना हो, है ना, वेन प्रॉमिस था वो. ही स्टूड अप 20, वो बहुत ही 20 इंचेस बड़ा हो गया, बड़ा दिखने लग गया अपीयरेंस में, है ना. उसके लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए. उसके घर पे बहुत सारे विजिटर्स आते रहते थे, जैसे कि मैंडिकेंट मतलब कि बेगर्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेडमैन मतलब कि व्यापारी जो सामान बेचने आते रहते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स सब आते थे. अटीला इन सबको बहुत ही वार्मली वेलकम करता था. जस्ट द अपोजिट दे वांटेड. वो चाहते थे कि कोई भी उनके घर में आए तो कैसा अटीला बिहेव करे, रूडली बिहेव करे, लोग उनसे डरें. लेकिन यहाँ पे क्या है, अटीला उनको बहुत ही वार्मली बिहेव वेलकम करता था. जैसे ही कोई गेट खोलता, वैसे ही द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकम अलर्ट, बहुत ही अलर्ट हो जाता, वो तुरंत गेट की तरफ दौड़ता. लेकिन जैसे ही कोई उससे प्यार से बात करते या उसके हंस कर देखता, उसके जो दिल है वो पिघल जाता, है ना. हिज हार्ट वुड, अटीलाज वुड मेल्ट, एंड ही वुड बिहेव एज इफ अपोलोजाइजिंग. और फिर वहाँ पे ऐसा बिहेव करता है जैसे वो माफ़ी मांग रहा है कि उसकी वजह से आप, मेरी वजह से आप डर गए. तो दिस वॉज द वे ही यूज टू बिहेव. ओके. Gradually, he realized that his bouncing advances caused much unhappy and misunderstanding, and so when he heard the gate click, he hardly stirred. अब अटीला को भी ऐसा लगने लगा था कि मेरे इस तरह से दौड़ के गेट तक जाने से क्या होता है कि लोग डर जाते हैं. तो उस इस वजह से अब उसने क्या किया, अब गेट खुलने पर वो कभी अपनी जगह से हिलता ही नहीं था, वो वहीं बैठे रहता था. वाई, ताकि उसको वो किसी उसकी वजह से कोई और डर ना जाए. So this is how Attila was behaving when he was 14 years. When he was the age, he was expected to become rude. Okay, so everyone is expecting that this dog will become one day rude, but now the time has came. He is so big in appearance, but he has not changed in his emotions. Rather, he has become so vulnerable and emotional towards people, and he is having humanity in him.
ओके, द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस डॉग की इस एटीट्यूड को पसंद नहीं करते। दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स ऑब्वियसली। दे हैव केप्ट इट एज अ वॉच डॉग, kept him as a watchdog. Why not change his name to Blind Worm? Somebody asked. He eats like an elephant. तो वो वहाँ पे किसी ने बोला कि क्यों ना इसका नाम ना बदल के वाइल्ड डॉग रख देना चाहिए, बिकॉज ये एक एलिफेंट की तरह खाता है, सेट द मदर ऑफ द फैमिली. You can employ two watchmen to the price of rice and meat he consumes. Somebody comes every morning and steal all the flower in the garden and Attila won't do anything about it. तो मदर जो है वो बहुत गुस्सा है, बोलती कि एलिफेंट की तरह खाता है ये, जितना जितना चावल और मीट ये खा जाता है उतने में तो मैं एक वॉचमैन रख लेती. ठीक है. तो somebody comes every morning and steal all the flowers. कोई आता है सुबह हर फ्लावर को चोरी करके चला जाता है in the morning, and Attila won't do anything, और Attila कुछ भी नहीं करता. He has better business to do than catch flower thieves, replied the young son. Obviously the character I have told, young son जो है वो ये है. वो क्या है, वो यंग सन जो है ना इस पूरी स्टोरी में, इन द होल स्टोरी ही इज़ जस्ट गोइंग टू डिफेंड द डॉग. डिफेंड डॉक्टर डॉग को डिफेंड करेगा यहाँ पे. ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, मतलब कि उसके पास और भी दूसरे काम हैं कि वो एक फूल चोर को पकड़े. ठीक है. तो रिप्लाइड द यंगेस्ट, ऑलवेज द डिफेंडर ऑफ द डॉग. व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस, mother asked, obviously. When if somebody comes in at dawn and take away the flower, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? अगर भोर में ही मतलब कोई 4-5 बजे सुबह अगर आकर फूल चोरी चले जाता है तो क्या आप चाहते हो कि अटिला उस समय भी बाहर घूमता रहे? कौन बोल रहा है ये? यंगेस्ट सन बोल रहा है. Why not? It's a well fed dog ought to be doing instead of sleeping. You ought to be ashamed of your dog. यस, उसका काम ही यही है, उसको तो ये करना ही चाहिए, उसको बल्कि सोने के बजाय, है ना. और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने डॉग के ऊपर. हु इज़ सेइंग? मदर इज़ सेइंग दिस. ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर. आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग अराउंड द हाउसेस एंड वॉचिंग ऑल नाइट. वो पूरी रात नहीं सोता है. मदर कौन बोल रहा है ये? द सन, यंगेस्ट सन. एंड ही आई हैव सीन हिम गोइंग अराउंड, मतलब कि मैंने कई बार देखा है वो रात में इधर उधर घूमता रहता है, वॉच करता रहता है. Really, does he prowl about all night? Of course he does, has said the defender. ठीक है. तो वो हमेशा ही क्या करता है, डिफेंड करता है उसको. I am quite alarmed to hear it, said the mother. Please lock him up in the room at night. Otherwise, he may call a burglar and show him around. Let alone let alone a burglar might after all be less successful. It wouldn't be so bad if he at least barked, as he is the most noiseless dog I have ever seen in my life. Then what happens कि मदर बोलती हैं कि आई एम क्वाइट अलार्म टू हेयर इट. अच्छा, मुझे ये लगता है, मुझे ये थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड हुई मैं कि ये सुनकर कि वो पूरी रात इधर उधर घूमता रहता है. तो अच्छा है उसको एक रूम में बंद कर दो, क्योंकि अगर वो रात को घूमता रहेगा तो वो एक बर्गलर को अंदर, मतलब बर्गलर मतलब होता है चोर. ठीक है. बर्गलर को अंदर लेकर आ जाएगा. ठीक है. ये अच्छा है कि बर्गलर अकेला रहे, तो वो कम से कम सक्सेसफुल होगा, बजाय इसके कि he wouldn't be so bad if he at least barked. ठीक है. एंड ही इज़ मोस्ट, मतलब कि वो कभी भी भौंकता नहीं है, कभी भी ऐसा डॉग पहली बार देखा है उन्होंने कि इतना नॉइसलेस है, वो कभी भी कुछ बोलता ही नहीं है. यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस. ही कंसिडर्ड इट टू बी द मोस्ट अनचैरिटेबल सिनिसिज्म. सिनिसिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रस्ट. अनचैरिटेबल मतलब विदाउट एनी रीज़न. ठीक है. दे डू नॉट without any reason they are distrusting him, but the dog justified it that very night. Okay. बट अब अभी तक तो उस पर हम लोग डिस्ट्रस्ट कर रहे थे कि वो बिना किसी रीज़न के, बट उसी नाइट उसने ये जस्टिफाई कर दिया कि हाँ, वो एक ऐसा डॉग है जो किसी काम का नहीं है. रंगा लिव्ड इन अ हट. नाउ द रंगा कम्स हियर. रंगा बेसिकली एक हट में रहता है और एक 3 miles फ्रॉम द टाउन से, और एक गैंग कूली है वो, जो कि
रोड का जो मरम्मत होता है का जो सड़क का मरम्मत होता है, रोड मेंडिंग, उसका काम में लगा हुआ है। बट ओकेजनली वो कभी कभी किसी किसी घर में चोरी करने भी घुसता है। ओकेजनली एट नाइट ही enjoyed द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउस। At 1 o'clock the night, Ranga removed the bars of the window on the eastern side of the house and slipped in. उसने क्या किया, खिड़की के एक बार को बाहर निकाला और उसने वो अंदर घुस गया। ठीक है। He edged all the along the wall, searched all the trunk and almirah in the house, and made a neat bundle of all the jewelries and other vulnerable he could pick up. ठीक है। तो उसने क्या किया, जितने भी ज्वेलरी हैं सब कुछ उसने अपने एक थैला बनाया, उसने एक पैकेट बंडल बनाया और बंडल बनाकर वो निकलने लगा। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट एंड ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड in the window when he saw Attila standing below, looking up extremely expectantly. Ranga thought his hand had come. He expected a dog to bark, but not Attila. He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up, and put his 4 paws on the lap of the burglar. He put back his ears, licked Ranga's hand, and rolled his eyes. Ranga whispered, I hope you aren't going to bark. Then what happens? Ranga was about to leave through the window that he has came. At that time only he saw Attila standing below and he was looking expectantly, मतलब कुछ expectation के साथ वो देख रहा था किसको, रंगा को। रंगा डर गया, उसको लगा कि हाँ दिस इज़ द एंड, अब ये डॉग है ये बार्क करेगा और मैं फंस जाऊंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। वो डॉग उल्टा क्या हुआ, वहाँ पे रुक कर बहुत देर तक देखा और जब बहुत देर तक देखने के बाद वो उसके पास गया और उसके लैप पे अपने दोनों पाँव, जो सामने वाले पाँव होते हैं 4 paws, वो दोनों उसके लैप पे रख दिया और उसको लीक करने लग गया। ठीक है। ही पुट बैक हिज ईयर्स एंड लीक्ड रंगाज हैंड, और रंगा के हैंड को, एंड रोल्ड हिज आइज। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्योर वल्नरेबल डॉग है। ही इवन नॉट बार्क्ड अ सिंगल टाइम एट दैट टाइम। डोंट यू वरी आई एम नॉट दैट सॉर्ट द सॉर्ट डॉग ट्राई टू से। उसने ऐसा लगा जैसे कि वो रंगा को बोल रहा है कि तुम डरो मत, मैं उस तरह का डॉग नहीं हूँ। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी डाउन फ्रॉम हेयर, said the burglar. The dog obligingly took away his paws and lowered himself. See there, said Ranga, pointing to the backyard. There is a cat. Attila put up his ears at the mention of the cat and dashed in the direction indicated. One might easily have thought he was going to tear up a cat, but actually he didn't want to miss the pleasure of the company of a cat if there was one. ओके। तो कोई भी अगर ऐसा मतलब कंडीशन, उसका जो रिएक्शन था वो देख के ये सोचेगा कि वो कैट को पकड़ने जा रहा है। ओके। अब उसको मारने जा रहा है, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, वो वहाँ पे कैट के साथ खेलने जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह देखा जाए तो अटीला के कैरेक्टर को क्या दिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा लवेबल दिखाया गया है। As soon as the dog left him, Ranga made a dash for the gate, given a sound more would have hopped over it. But the dog turned and saw what was about to happen, and in one spring was at the gate. He looked hurt, and is this proper? He seemed to ask. Do you want to shake me off? Then what happened? Dog wants to go with Ranga. He saw that Ranga hopped means उचक कर पार कर देना। तो ही हॉप्ड ओवर इट, मतलब गेट को उछल कर पार कर दिया। बट द डॉग सॉ इट एंड ही वेंट टू हिम एंड जस्ट अबाउट वन स्प्रिंग, मतलब वन स्प्रिंग मतलब एक ही पल में वो वहाँ पहुँच गया गेट के पास। और वो फिर उसके साथ ही लुक्ड हर्ट, मतलब उसको बहुत दुख हो रहा था इस बात को देखकर कि रंगा उसको छोड़कर जा रहा है। He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the burglar stroked his head, at which he revived. और उसके बाद फिर जब इतना ज़्यादा वो अपने टेल को, जैसे कि डॉग्स होते हैं जब इमोशनल होते हैं दे सेक देयर टेल, है ना, तो वो उसी तरीके से कर रहा है। नाउ द बर्गलर, व्हाट हैपेंस, बर्गलर जो है वो उसके ऊपर दया आता है और उसके सर पर टैप करता है।
देन व्हाट हैपन्स, अब उसको अच्छा लगा और बर्गलर ओपन द गेट एंड वेंट आउट एंड डॉग फॉलोड हिम, और फिर गेट खोलकर वो डॉग जो है वो किसके साथ चला गया, बर्गलर के साथ चला गया. अटिला's great ambition in life was to wander in the street freely. ठीक है, अटिला का जो सबसे बड़ा एम्बिशन था लाइफ का वो था ये कि वो कभी सड़क पे मतलब रोड पे अकेले फ्रीली घूमे. ठीक है, अभी तक वो घर में रहता था और घर के अंदर बंद रहता था, तो उसके लिए एक आज़ादी मिल गई थी उसको रंगा के थ्रू. नाउ द थिंग सीम टू बी शेपिंग अप आइडियली. Now what happens? Here you can see the picture. The Attila dog is going with Ranga. Attila liked his new friend so much that he wouldn't leave him alone even for a moment. He lay before Ranga when he sat down to eat, sat on the edge of his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and there and then for a wash, slept on the roadside when Ranga was at work. That what is happening here? He he started living with Ranga at every cost or at every time. Whenever Ranga is away for some work, he used to wait for him. Whenever Ranga is away for any work, he used to wait for him. And this sort of companionship got on Ranga's nerves, and he implored, that is, he begged, "Off, dog, leave me alone for a moment." And what happened? Because of this continuous companion of dog, being accompanied by the dog, Ranga is now Ranga is now bored. Actually, he wants to get freed from the dog. He feels like uh, dog is the dog is getting into his life, into his personal life, and that is what is happening here. "Oh, the dog, leave me alone for a moment, won't you?" Unmoved, Attila sat before him with his eyes glued on his friend. But Attila made no difference. He wants to stay with him only. He finds a good friend in Ranga. Oh, Attila. Attila finds a good friend in Ranga, and Attila do not want to leave him. Attila's disappearance created a sensation in the bungalow. Didn't I tell you? The mother said to lock him up. Now the back to the home. What is happening there? We are seeing here that Attila's disappearance. Attila is not at home now, and everybody is worried about Attila. The mother said, "Didn't I tell you?" The mother said, "To lock him up." उसको मैंने बोला ना था तुम्हें बंद करके रखने के लिए. Now some burglar has gone away with him. अब देखो एक burglar उसके साथ में चला गया है. What a shame! We can hardly mention it to anyone. कितना शर्म की बात है, हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारा जो डॉग है वो बर्गलर के साथ चला गया है. "You are mistaken," replied the defender, the youngest son. Defender means youngest son. वो बोलता है कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है. It is just a coincidence. He must have gone off all on his own account. ठीक है. If he had been there, no thief would have dared to come in. ठीक है, ऐसा नहीं है. But the defender, the youngest son, he do not want to believe that Attila has done this. वो अभी भी विश्वास करता है अटीला पे. वो बोलता है कि नहीं ये कोइंसिडेंस होगा कि अटीला उसी समय चला गया. अगर अटीला होता तो वो चोरी नहीं होने देता. वट एवर इट इज़ आई डोंट नो इफ़ ही वी शुड आफ्टर ऑल थैंक द थीफ फॉर टेकिंग अवे द दैट डॉग. He may keep the jewels as a reward for taking him away. Shall we withdraw the police complaint? Then what mother says, okay, whatever it is, I don't know. But if we should, after all, thank the thief for taking away the dog. हमें देखा जाए तो उसे थैंक ही करना चाहिए कि वो डॉग को हम यहाँ से लेकर चला गया. ही मे कीप द ज्वेल्स. अच्छा है उसने अपने ज्वेल्स को अपने साथ रखे ही रहे एक रिवॉर्ड की तरह कि उसने इस तरह के डॉग को लेकर चला गया. साल वी ड्रॉ द मतलब कि क्या हम जो पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं उसको वापस ले लेना चाहिए हमें. This fastidiousness ceased a week later,
and Attila rose to the rank of a hero. The eldest son of the house was going towards the market one day and he saw Attila trotting behind someone on the road. Now what happens कि एक ही हफ्ते बीते थे एंड अटीला हैज़ बिकम अ हीरो. अब कैसे वो हीरो बना? एक बार क्या हुआ, द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस, जो घर का जो बड़ा बेटा है, वो बाहर की तरफ जा रहा था. देन उसने रोड पर अटीला को देखा. ट्रोटिंग मतलब क्या था? चलते हुए, घूमते हुए. नाउ दे shouted the young man, at which रंगा turned. ने और उसने यंग मैन जिसके साथ वो घूम रहा था, ऑब्वियसली रंगा के साथ वो घूम रहा था, और रंगा को देखते ही उसने चिल्लाया, हे shouted the young man, at which रंगा turned and broke into a true ran. रंगा को समझ में आ गया कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा, मुझे भागना चाहिए. वो भागने लग गया. Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, galloped behind Ranga. अब अटीला को पता था कि उसको एक चांस मिलेगा और रंगा मेरे को छोड़कर चला जाएगा. जैसे ही रंगा भागना शुरू किया, वो रंगा के पीछे भागना शुरू कर दिया. कौन? अटीला. Hey Attila, shouted the young man, and he also started running. Attila wanted to answer the call after making sure of his friend, and so he turned his head for a second and galloped faster. Ranga desperately doubled his pace. Attila determined to stick to him at any cost. As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way, and Ranga stumbled over him and fell. ठीक है. तो अटीला को ये तब बताया, अटीला इज सो डिटरमाइंड दैट ही वांट्स टू बी विद हिज फ्रेंड एंड ही इज कंटिन्यूसली what he is continuously running behind him, and Ranga is running for not being caught. So there is a difference. Ranga जो है वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है, but a dog is running behind Ranga for being with him. And at last द डॉग ओवरटोक हिम, मतलब उसको ओवरटेक करके उसके सामने चला जाता है, और रंगा फेल गेटिंग स्टम्बल्ड ओवर हिम. स्टम्बल मतलब उसने टकरा कर वो नीचे गिर जाता है. एंड एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड द पीस ऑफ ज्वेलरी which he was taking in to a receiver of stolen property. ठीक है. और जैसे ही वो नीचे गिरता है, उसके पॉकेट से उसकी जो ज्वेलरी जो उसने चोरी की थी, वो किसी को बेचने जा रहा था, वो उसके पॉकेट से गिर जाती है. एंड द यंग एल्डेस्ट सन ही सॉ इट. और जो यंगर जो मैन है, वो क्या करता है, वो देख लेता है इस चीज़ को, और जब समझ जाता है कि जो ज्वेलरी है उसकी घर की है, उसके सिस्टर की है. सो अब द क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्स इन द सीन. और वहाँ पे एक भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस आ जाती है और पुलिस उसको पकड़ लेती है. इन दिस वे अटीला बिकम्स द हीरो ऑफ द फैमिली, एंड द फैमिली थॉट दैट अटीला हैज़ डन दिस डेलिबरेटली. मतलब अटीला ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है. एंड इसीलिए लास्ट में उसको ये भी बोलते हैं कि अटीला जो है बहुत ही कनिंग, बहुत ही समझदार, बहुत ही डिटेक्टिव है, और बहुत ही कनिंग डिटेक्टिव है, और इसीलिए उसको एक हीरो की कैटेगरी दी जाती है. ठीक है. इट वॉज एज वेल द अटीला हैड नो पावर ऑफ स्पीच, अदरवाइज ही वुड हैव बर्स्ट इन टू द लेमेंटेशन विच वुड हैव सैटर्ड द पेडेस्टल अंडर हिज फीट. पेडेस्टल मतलब क्या होता है? जब किसी स्टैचू को, जब किसी है जो पेडेस्टल या फिर फर्श बोल सकते हैं यहाँ पे. ओके. so this is how the story ends. It is written by R.K. Narayan, that I have said. So keep reading the chapter for at least 2 times, and study at home.